पुरस्कार विजेता एथलीटों के साथ भी उन्होंने काम किया है, खासकर कि कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप और लंदन 2012 और 16, ब्राजील 2016 जैसे ओलंपिक खेल से भी जुड़ी रही हैं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब डॉक्टर वंदना तंवर, ओवर टू यू, द फ्लोर इज ऑल योर्स एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट सेशन विद यू। I'm really grateful to all of you, the Bihar Sports Authority of India, to take this initiative and allowing me to interact with the great coaches and the officers right here who can really understand the importance of sports injury and the prevention. So today my topic will be based on sports injury prevention and the recovery methods, which will definitely help the coaches to understand and help their athletes to train in a better way while minimizing the risk of injury factors. So shall we start? Ma'am, before you start, let me introduce myself. I am Ravindran Shankaran. I am the DG Sports Authority of Bihar. Hello. And Dr. Sudhanshu Shekhar Roy is my mentor, as he is mentor to so many of them throughout the country. Yeah, and it's a great honor to have you on board here, ma'am, today. And actually, I'm traveling, so my voice might break. So my apologies for that. In fact, I had to visit Gopichand Academy today, so I had come to Hyderabad. Ma'am, my only request to you is, yeah, today we are having it on online. Be very, very honest with you. Digitally, Bihar and my coaches, my officers are yet to catch up with. So getting them online is a bit difficult for me every time whenever I organize webinar. So the number of participants, that is why it comes, it's not as expected. So I would request that whenever you are free, ma'am, let us know. You come down to Patna. We will arrange everything for you. And offline, you will be amazed to see the participants level. Definitely, I love to, sir, because I keep organizing the webinars in the colleges, also in the physiotherapy colleges and among the coaches of different various academies. So Yes, even I put the same thing in front of Roy, sir, because he is my guru and mentor too. So I love just because of him, because he always think about the athlete performance and he always try to give his best towards the performance and leading the sports development ahead. So definitely we will conduct offline webinar where the maximum participants can join, including the athletes who are really keen to understand, because they have to train themselves. Correct. So, I totally, we are on the same page. So that you tell me the date, time, number of sessions you wanted to conduct. Everything I'll get it arranged. Athletes, coaches, team managers, district sports officers, even the association secretaries, member, everybody will be there. So that will be ensured. And before you start the webinar, ma'am, my one request to you is to be bilingual, both English and Hindi. Yes, I will combine both. Hanji, bilkul. Yeah, thank you. It's over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much. So shall we start? Yes, sure, ma'am. So I won't much take time, as my introduction has already been given by the officer here, that my firm is now Physiolution, which is
a revolution in physical therapy and sports injuries. After a great exposure in Sports Authority of India, where I worked for almost more than 10 years with different disciplines of sports like Indian hockey women team, Indian table tennis team, Indian shooting, gymnastics, badminton, various sports I participated, and where my role was to treat the injured athlete, because we got various biomechanics, the analysts, the coaches. It's a teamwork where we have to work. So after Olympics 2016 Brazil, when I was with Indian shooting team, I got an idea to start up my own firm where I can, expose my ideas and views and the expertise at the larger scale. So that's why today I'm here to conduct a webinar for the coaches to make them understand and work as a team in a better way, so that we can really help our upcoming, the kids, even the where I want to put up the grassroots levels of training, जहां से बच्चा स्टार्ट करता है स्पोर्ट्स, तो उसको किस किस चीजों की जरूरत होती है, किस तरीके से वो अपने आप को डेवलप कर लेता है, क्या फेजेस होते हैं उसके, जो उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो एक कोच ही उसको ग्रूम अप करता है आगे के लेवल के लिए। और जब वो नेशनल्स खेलता है या इंटरनेशनल खेलता है, तो उसको जो बेसिकली प्रॉब्लम्स आती है वो इंजरीज के लिए आती है। ग्रास रूट लेवल्स पे तो उसको बेसिक कंडीशनिंग स्ट्रेंथनिंग दी जाती है, लेकिन जब वो एक इलीट परफॉर्मेंस के लेवल पे आता है, सो जो इंजरीज के रिस्क फैक्टर्स हैं वो इसलिए बढ़ जाते हैं, बिकॉज इट्स अ ग्रेट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स व्हिच अ प्लेयर नीड्स टू डू। सो माय टॉपिक टुडे इज sports injuries and its prevention. So my name is Dr. Vandana Tanwar, and here we go and start that why it is necessary to prevent the injuries, because अगर किसी भी प्लेयर को इंजरी होगी तो उसका करियर ही खराब हो सकता है, जो सालों से वो मेहनत करता आ रहा होता है, उसकी वजह से उसको जो फेस करना पड़ता है, अगर उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता तो वो अपने गेम से भी बाहर हो जाता है। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो वेरी करते हैं हर स्पोर्ट्स को लेके, लाइक योर हेरिडिटी, एज, जेंडर, लाइफस्टाइल, किस वो स्टेट से है वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि उनका फूड उस वहां पर किस तरीके का है, क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं उनकी बहुत ही स्पेसिफिक डाइट होती है। सो बट प्रिंसिपल्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। सो मैं सबसे पहले आपको लेवल्स ऑफ वही बताना चाहूंगी कि क्या क्या वो पॉइंट्स है, लाइक स्पेसिफिसिटी, लाइक इम्प्रूविंग इन योर स्पोर्ट्स, इन अ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक स्विमिंग, डेवलप द एरोबिक एंड्योरेंस बट नॉट द मस्कुलर एंड्योरेंस फॉर रनिंग। सिमिलरली फॉर द रनर, जो भागता तेज है उसके लिए एंड्योरेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्रोइंग और उसका पावर जो है वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमें अपने एथलीट्स को ट्रेन करना होता है जो उनके स्पोर्ट्स स्पेसिफिक बेस्ड होता है, जो उनके एक्चुअली फिटनेस को रिक्वायर्ड होता है। नाउ जो बेसिक फैक्टर इन्वॉल्व है वो है रिस्क फैक्टर, लाइक ओवर यूज इंजरीज। जो प्लेयर्स हैं उनको ये नहीं पता है कि किस इंटेंसिटी पे उनको खेलना है, ट्रेनिंग्स लेनी है, कितने टाइम वीक में उनको कितने घंटे देने हैं, क्या उनका वाटर का लेवल होना चाहिए। सो उससे क्या होता है कि जो एबनॉर्मेलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं बॉडी में, वो इंट्रिंसिक भी होती है, यानी कि अंदर से जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, या बाहर की एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, या स्पोर्ट्स इम्पोज डेफिशिएंसीज होती हैं। अगर मैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात करूं तो वो हो सकता है माल अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, लाइक एक जिम्नास्ट है, उसकी बॉडी का पोस्चर क्या है, क्या वो लैंडिंग कर पाएगा ढंग से या सोमरसॉल्ट्स कर पाएगा। सो ये इंट्रिंसिक एबनॉर्मेलिटीज है। उसकी वीकनेस ऑफ मसल्स क्या है, जॉइंट्स, मसल पोजिशनिंग क्या है, क्या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम किसी भी एथलीट को एक ट्रेन करते हैं। ऐसे नहीं होगा कि आपके पास बच्चे आए अकेडमी में और आपने उनको एक हाई इंटेंसिटी जोन पे ले जाके ट्रेन कर दिया। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर, किस प्रेजेंट कंडीशन में बच्चा आपके पास आया है, तभी हम इसको अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं और उसके रिस्क फैक्टर इंजरी के भी खत्म कर सकते हैं।
दूसरा आता है फुट मॉर्फोलॉजी। आपने सुना होगा कि कुछ बच्चों के पैर वैरस में होते हैं, बाहर की तरफ, वैल्गस में होते हैं, नॉकनीज की तरफ, या फिर फ्लैट फुट होता है। तो जो आपका फुट का है बायोमैकेनिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन में, जो मैं आगे जाके, अगर हम आगे वेबिनार्स करते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि फुट का कितना बड़ा रोल होता है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, टेक एनी स्पोर्ट्स। एक्सट्रिंसिक, जो बाहर के एबनॉर्मेलिटीज हैं जिससे एक एथलीट अफेक्ट होता है, वो हो सकता है आपके ट्रेनिंग एरर्स, आपका इक्विपमेंट, टेक्निक्स, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से एथलीट को मसल ओवर यूज इंजरीज हो जाती हैं। सो कोच को पता होना चाहिए कि हमें ट्रेनिंग किस लेवल पे जाके स्लो डाउन करनी है, मॉडरेट करनी है, या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग देनी है। क्योंकि जब हम अपने मसल्स को ओवरलोड करते हैं तो यू कैन सी दिस साइकिल कि हमारे जो बायोमैकेनिक्स हैं वो कितने ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। मस्कुलर वीकनेस की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से, या कोई भी टिश्यू के अंदर स्कार है, या स्ट्रेंथ है, या इम्बैलेंस है, उसकी वजह से आपकी मसल में छोटे छोटे माइक्रो टियर्स डेवलप हो जाते हैं, और अगर उनको फिजियोथेरेपिस्ट नहीं ठीक करता है तो वो एक इंजरी फैक्टर में बदल जाते हैं। क्योंकि हमेशा इंजरी स्टार्ट ही स्ट्रेस से होती है, विच इज अ ओवरलोडिंग ऑफ द मसल। सो कोच नीड्स टू अंडरस्टैंड नॉट टू ओवरलोड the training methods and the muscles. They need to provide the recovery methods also, जो मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। जो कॉमन हमें इंजरीज मिलती हैं वो मसल्स में हो सकती हैं, बोन्स में हो सकती हैं, नर्व्स में हो सकती हैं। देयर आर मेनी एरियाज ऑफ आवर बॉडी जहाँ पे एक ओवरयूज इंजरीज हमें देखी गई हैं। जो कॉमन है वो है लिगामेंट इंजरी। आपने सुना होगा कि मेनिस्कस इंजरी हो गया, एसीएल इंजरी हो गया है। एथलीट स्क्वाट कर रहा था या रनिंग कर रहा था, रनिंग करते करते थोड़ा सा पैर ट्विस्ट हुआ और उसको लिगामेंट इंजरी हो गई। ये देखिए स्क्वाटिंग पोजीशन में किस तरीके से इंजरीज हो जाती हैं। और ये फुट की इंजरी देखिए, यहाँ पे हमारा एक बहुत ही कॉमन सिंड्रोम होता है, जिसको अगर हमने ओवर ट्रेन कर दिया अपने एथलीट को, तो ये ओवर ट्रेनिंग की वजह से यहाँ पे बहुत ही सीवियर इंजरी हो जाती है लिगामेंट की, जिसको ट्रीट करने में बहुत टाइम लगता है। हमें ओवर यूज इंजरीज के ऊपर काम करना होगा एज अ टीम। कोचेस विल ट्रेन द एथलीट, बट द फिजियोथेरेपिस्ट and the other experts, the fitness trainers, need to take care of the injuries part and to talk with the coaches. Coaches को हमें educate करना होगा कि और उनसे बात करनी होगी कि आप किस मॉडरेट लेवल से ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हम साथ साथ उनका रिहेबिलिटेशन भी करते रहें, रिकवरी मेथड्स भी हम उनके एथलीट्स को देते रहें। नाउ आई विल टॉक कि अगर जब आपके पास बच्चा ग्राउंड पे आता है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमेशा वार्म अप और स्ट्रेचिंग से। सो देयर इज ऑलवेज अ वार्म अप विच इज अ प्री गेम वर्कआउट एंड पोस्ट गेम वर्कआउट। सो हमें वार्म अप करना क्यों जरूरी है? वार्म अप का मतलब क्या होता है? वार्म अप करने से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की टिश्यू की डेंसिटी है, या फिर हमारे टिश्यू की जो लेंथ है, उस पे हम काम कर सकें। और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी एनर्जी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं। एनारोबिक में क्या होता है, 10 to 15 सेकेंड्स की बड़ी हाई इंटेंसिटी जोन एक्सरसाइजेस होती है। फिर हमारा ग्लाइकोटिक फेज होता है। ये दिस इज ऑल साइंटिफिक विच आई विल नॉट गो इन डिटेल, बट द एनर्जी सिस्टम किसको लेके हम वार्म अप कर रहे हैं, बेसिक वार्म अप कर रहे हैं या ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, वो अंडरस्टैंड करना कोचेस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप वार्म अप अपने प्लेयर्स को कराते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको फॉर्म रोलर्स जो होते हैं वो यूज करने बहुत जरूरी होते हैं। उस फॉर्म रोलर से क्या होगा कि जो आपकी मसल्स हैं, देयर विल बी अ मायोफेशियल रिलीज ऑफ द मसल्स, यानी कि जो टाइट मसल्स हैं प्लेयर की, टाइट कहीं पे भी, लाइक आप हैमस्ट्रिंग मसल ले लो, बैक ऑफ द थाई जिसे कहते हैं। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट है तो आपके एथलीट की जो रनिंग की स्पीड है वो डिक्रीज होगी, उसकी मसल बहुत जल्दी फटीग होगी, और फटीग होने के कारण उसको इंजरी भी जल्दी होगी। आपने सुना होगा कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेस आ गया या स्ट्रेन आ गया, उसको हर वक्त अब दर्द रहता है पैर में। और ऐसे ऐसे एथलीट्स होते हैं जिनकी वो इंजरी इतनी ज्यादा क्रॉनिक हो जाती है कि फिर वो भाग ही नहीं पाते उस इंटेंसिटी पे जिसपे उन्होंने ट्रेन किया था अपने आप को। अगर आप वार्म अप स्टार्ट करते हैं
अपनी टिश्यू डेंसिटी, टिश्यू की लेंथ, और एक होती है न्यूरोमस्कुलर डायनेमिक ड्रिल्स, उस पे अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने वार्म अप को, विच कैन बी स्टैटिक एंड डायनेमिक। सो मैं आपको बता दूं कि जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है वो 10 to 15 सेकेंड होती है एक मसल को किसी भी लेंथ पे होल्ड करने की। डायनेमिक स्ट्रेच में क्या होता है कि आप उसमें टू एंड फ्रो मोशन लेके जाते हैं। अगर लेग की करनी है तो आई विल टेक माई लिम्ब टूवर्ड्स दी हाईएस्ट रेंज ऑफ मोशन, जो उसकी रेंज ऑफ मोशन है उस लेवल पे लेके जाना है, यानी कि मूवमेंट जिसमें होती है वो हमारी डायनेमिक स्ट्रेचेस होती हैं, जिसमें आप ड्रिल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, अगर आप स्टैटिक प्लस डायनेमिक स्ट्रेचेस वार्म अप में ऐड कर देते हो तो इससे आपका क्या होगा कि आपकी जो नर्व फैसिलिटेशन है, जो आपकी इंटेंसिटी है आगे परफॉर्म करने की, वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज डायनेमिक स्ट्रेचेस always increase the performance, which is there, you can google it also, that dynamic stretches करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो always make your athlete to start with the basic warm up, which involves the both static and dynamic stretches. So stretching, I have told you that why it is important. So I have already told you that dynamic का क्या फायदा होता है, static क्या होता है। न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन ड्रिल्स हम अपने एथलीट को करा सकते हैं, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, उनका जो मूवमेंट का क्वालिटी है वो इंप्रूव होगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी अगर बॉडी में है तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी में चेंज होके आपकी मसल्स की लेंथ को बढ़ा के आपका जो परफॉर्मेंस है मसल का वो इंप्रूव कर देगी। जैसे कि अभी एग्जांपल आप देखो, ये बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, तो टिश्यू डेंसिटी में वो क्या यूज कर रहा है, फॉर्म रोलर यूज कर रहा है। सो यू कैन सी वो बेसिकली अपने ग्लूट्स को फॉर्म रोलर के थ्रू स्ट्रेच कर रहा है। रोलिंग से क्या कर रहा है, टिश्यू डेंसिटी को मिनिमाइज कर रहा है। ये वो स्टैटिक स्ट्रेच कर रहा है सेकंड इसमें अगर आप देखें। और ये जो थर्ड है ये स्टार लंजेस कर रहा है। स्टार लंजेस किसका एग्जाम्पल है, डायनेमिक स्ट्रेच का है। जंप रोप करना, हाई नी रन्स करना, डेप्थ जंप करना, एंकल मोबिलिटी कराना, ये सब क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर रेडीनेस। इट इज अ पार्ट ऑफ वार्म अप, इट्स अ पार्ट ऑफ डायनेमिक स्ट्रेचेस, जो हमें अपने एथलीट को कराना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो डायनेमिक स्ट्रेच है वो एलिसिट करता है बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट। सो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि जो डायनेमिक स्ट्रेचिंग है वो इम्प्रूव करता है नी जॉइंट, इंक्रीज द ऑक्सीजन अपटेक, लोअर द लैक्टेट कंसंट्रेशन, hamstring and calf muscle groups, which plays a very important role. आप कोई भी स्पोर्ट ले लो, लाइक हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, जिसमें एजिलिटी है। एजिलिटी इज व्हाट, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, which has to be very quick according to the sports. So static and dynamic stretching of hamstring, calf muscles on agility performance is very, very crucial. You can see I'm just training one of the tennis player. He is basically a tennis player जिसका मैं stretching करा रही हूँ। So ये मैं उसको stretch करा रही हूँ before his match. सो मैच से पहले हमको उनको ज्यादा स्टैटिक स्ट्रेचेस नहीं देने होते, डायनेमिक ही देने होते हैं, ताकि उनका न्यूरोमस्कुलर रेडीनेस डेवलप हो, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो क्विक रिस्पॉन्ड करे। और स्टैटिक हमेशा हमें आफ्टर ट्रेनिंग देना चाहिए, जिसमें होल्ड कर सकते हैं अपनी मसल को फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन वी स्ट्रेच। सो दैट इज बेसिकली अ रिलैक्सिंग मेथड। सो जब हम किसी भी मूवमेंट की बात करते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि लंजेस तो सबको पता है कैसे करने हैं, स्क्वाट्स कैसे करने हैं, लेकिन टेक्निक क्या है उसकी, किस तरीके से लंजेस करे जाने चाहिए, क्या पोस्चर है, ये एक हमारे लिए क्वेश्चनेबल होता है एथलीट्स के लिए। दे आर डूइंग द रॉन्ग स्क्वाट्स, दे आर डूइंग लंजेस इन द रॉन्ग पोजीशन, जिसकी वजह से उनको जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। सो यू कैन सी, एक पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, ये जो मेरे ऊपर के प्लेयर्स हैं, दे आर खो-खो प्लेयर्स बेसिकली, they are international players, and look at the posture, how they are doing the squat. So this is not the way to do the squat. आप देखो जो करेक्ट वे है वो मैंने नीचे मेंशन किया है, दिस वन, कि जो आपकी बॉडी का अपर ट्रंक है वो किस तरीके से आपके नी लेंथ को 90 डिग्री होना चाहिए, और जो टॉर्सो है, टॉर्सो यानी कि टो, इन दोनों की लाइन एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए।
ये आपका पोस्चर होना चाहिए स्क्वाट्स का। तो ये कौन ट्रेन करेगा? कोचेस ट्रेन करेंगे अपने एथलीट्स को, करेक्ट करेंगे। जब वो उनको ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं तो दे विल इंस्ट्रक्ट, ओके स्टार्ट विद द स्क्वाट्स, स्टार्ट विद द लंजेस, बट एक पोस्चर को मेंटेन कराना, एक अपनी अपनी बॉडी की कैपेसिटी होती है हर प्लेयर की, जरूरी नहीं है हर कोई स्क्वाट इस तरीके से कर पाएगा। तो उसको उस लेवल पे लाने के लिए आपको वार्म अप, स्ट्रेचिंग और उसके पोस्चर को करेक्ट करना होगा, विच इज अ रोल ऑफ फिजियो एंड द ट्रेनर्स। सो देखिए सर, इसमें आप फॉरवर्ड लंच देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉरवर्ड लंच होना चाहिए। द बेंडिंग ऑफ द नी विद द टॉर्सो, दिस इज द राइट एंड करेक्टिव पोस्चर विच यू नीड टू नो। ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच में आप देखिए यू कैन मेक यूज ऑफ थेराबैंड्स। आई एम जस्ट टेलिंग यू द टूल्स। आपको जब भी स्ट्रेच करना है या वार्म अप करना है, सो कीप फ्यू थिंग्स रेडी विद यू, विच इज अ फॉर्म रोलर, द वॉबल बोल्ट्स, थेराबैंड्स। हमेशा ये आपके पास रेडी होना चाहिए वार्म अप के लिए। थेराबैंड से बहुत अच्छी स्ट्रेचेस होती है। दिस इज द वॉल एंकल मोबिलिटी। अगर आप ये वॉल एंकल मोबिलिटी करते हैं तो आपके जो टाइट काफ मसल्स हैं या एंकल है, स्ट्रेन बार बार होती है तो वो नहीं होगी। सो दिस इज द अनदर स्ट्रेच जिसमें आप देख सकते हैं कि रोटेशन में लेग रखा हुआ है एथलीट ने और वो अपने 3D हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहा है, बिकॉज हैमस्ट्रिंग सिर्फ एक सिंगल लेंथ में नहीं होता, लेटरल या मीडियल रोटेशन में करके भी हो सकता है। तो ये सब स्ट्रेचेस एक बहुत ही बेसिक स्ट्रेचेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बट दे प्ले वेरी वेरी क्रूशियल रोल व्हेन यू स्टार्ट योर ट्रेनिंग। दिस इज द क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच, जो आगे की मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, उनको किस तरीके से स्ट्रेच करना चाहिए। पेक्टोरल, चेस्ट, अपर थोरैसिक रीजन को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आप ये देखिए मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ तो इसका मैं थोरैसिक रीजन स्ट्रेच कर रही हूँ। बैडमिंटन प्लेयर है या टेनिस प्लेयर है तो उनको अपना अपर बॉडी का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। सो अपर बॉडी में अगर स्ट्रेस होगा या ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं तो ही विल नॉट बी एबल टू प्ले एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो जो स्पोर्ट्स है हमारा, जो ट्रेनिंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वार्म अप, योर एक्टिविटी एंड देन योर कूल डाउन फेज। सो वार्म अप मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो मेन एक्टिविटी से पहले किया जाता है और कूल डाउन किया जाता है आफ्टर योर गेम, व्हेन योर गेम गेट्स ओवर। सो नाउ वी टॉक अबाउट द रिकवरी। कूल डाउन एक ऐसा फेज है विच इज कॉल्ड एज रिकवरी। सो व्हाट इज रिकवरी? This is the time when your body adapts to the stress of exercise. Already body stress को adapt कर चुकी है कि इतना level of training coach देगा ही देगा, right? So जब भी ट्रेनिंग होती है हमारी बॉडी में क्या होता है? फ्लूइड लॉस होता है, मसल टिश्यू के क्या होते हैं? ब्रेकडाउन होते हैं, डिप्लीशन ऑफ एनर्जी होती है। सो हमें रिकवरी करना इसलिए जरूरी है ताकि जो हमारे लॉस ऑफ फ्लूइड है या लॉस ऑफ एनर्जी हुई है उसको रिप्लेनिश करना है। वी हैव टू रीफ्यूल्ड आवर बॉडी। So there are various methods of doing the cool down, which is an active recovery. Active recovery क्या कैसे की जाती है? It's a cool down phase just after your training. जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ओवर हुई आपने अपना एक्टिव रिकवरी स्टार्ट कर दिया है। वो कैसे करेंगे? स्मॉल जॉग करके कर सकते हैं। आइस बाथ, आइस बाथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है आपके रिकवरी का, जो मैं आपको अभी आगे स्लाइड्स में बताऊंगी। लॉन्ग टर्म रिकवरी कैसे करते हैं? जैसे कि आपका ट्रेनिंग 1 वीक का था तो लॉन्ग टर्म में आप मसाज थेरेपी ले सकते हैं, मैस्योर से रिलैक्सेशन थेरेपीज ले सकते हैं। कभी भी मैच के दौरान आपने मसाज नहीं लेनी चाहिए, अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि उससे आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल रिलैक्स मोड पे हो जाता है, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है? तो आपने मसाज मैचेस के दौरान में नहीं लेनी चाहिए। बेटर यू गो फॉर द स्टैटिक स्ट्रेचेस एंड द ट्रेनिंग्स ड्रिल्स, जो आपको एक्टिव रखता है और आपके रिफ्लेक्सेस को भी इम्प्रूव करता है। सो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। अब कूल डाउन फेज जो हम करते हैं उससे क्या होगा? जब आप कूल डाउन कर रहे होते हैं आपकी पल्स लोअर होती है, आपकी स्ट्रेचिंग करने से आपकी जो हार्ट रेट है वो भी स्लो डाउन होता है, लैक्टिक एसिड जो बॉडी में एक्युमुलेटेड होता है वो पुल आउट होता है। सो कूल डाउन करने से आपकी सोरनेस, स्टिफनेस वो घट जाती है, ब्लड पूलिंग जो हो रही होती है फास्ट वो स्टॉप हो जाती है, लैक्टिक एसिड जो जमा होता है मसल्स में वो धीरे धीरे रिलीज होता रहता है। सो ये कूल डाउन के फेजेस हैं हमारे।
हार्ट रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक कोच को पता ही होता है कि मुझे किस लेवल पे हार्ट रेट को उसको लेके जाना है, ताकि उसका मैक्सिमम हार्ट रेट आएगा, तभी वो हाई इंटेंसिटी जो वर्कआउट्स है वो कर पाएगा. सो ये पता करना बहुत जरूरी होता है कि उसकी रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है और रिकवरी हार्ट रेट क्या है. जैसे हम हॉकी में देखते थे, जब हमने आज प्लेयर को ट्रेन किया है, सो नेक्स्ट डे हम उसकी हार्ट रेट चेक करते थे कि किस लेवल पे है, तो उससे हमें ये पता लगता था कि whether the athlete has recovered from the training which is being given on the previous day or not. अगर नहीं हुआ है then we give them the different methods of training so that उसकी body जो है proper अपने level of normal heart rate पे आके हम उनको train कर सके, क्योंकि हमें muscle को as I told you over train नहीं करना है. अगर मैं muscle को over train कर दूंगी तो definitely maximum efficiency नहीं आएगी और मेरे एथलीट का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा, चाहे कोच कितनी भी मेहनत कर ले. सो सबसे पहले मुझे उसकी बॉडी की कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करना है, which is not a one day process. It takes years to understand for the adaptation. Body adapt करती है stress को, which is a part of basically a recovery. सो जैसे मैंने आपको बताया हार्ट रेट के बारे में कि एरोबिक टारगेट जोन जो होता है वो एरोबिक फिटनेस को आप 60 to 80% अगर मैक्सिमम हार्ट रेट है उस पर ट्रेनिंग करा सकते हैं. एनारोबिक जो होता है वो उसकी इंप्रूव करता है स्पीड को, एजिलिटी को, जो 90% पे करते हैं. सो देयर आर वेरियस मेथड्स व्हिच इज बेसिकली वेरी डिटेल्ड, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. सो रिकवरी प्लस हार्ड वर्क दोनों चीज मिला के हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता है हमारे एथलीट का. परफॉर्मेंस में जब आपके परफॉर्मेंस होते हैं, आप स्टार्ट करते हो सेशन में, आप थक जाते हो, रिकवरी होती है, 2-3 दिन भी लग जाते हैं, देन यू स्लोली यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. एक दिन में परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होता है बिकॉज इट टेक्स टाइम. सो देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स. उसमें क्या होता है कि पहले अडेप्ट करती है बॉडी ट्रेनिंग को कि कोच ट्रेनिंग किस तरीके की दे रहे हैं. उसमें फेजेस होते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव फेज है. कॉग्निटिव फेज में जस्ट बच्चे को ये पता होता है कि अच्छा मुझे ये करना है. दूसरा फेज होता है एसोसिएटिव फेज. अच्छा मुझे ये करना है और इस लेवल पे करना है और रोज ही करना है यही चीज, तो उसकी मसल्स उस चीज को अडेप्टेशन में लेके जाती है. फिर थर्ड आता है ऑटोनोमस. अब उसकी बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करेगी. जैसे आपने जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ब्रश करना सिखाया जाता है, विच इज अ पार्ट ऑफ मोटर स्किल. यस, सो मोटर स्किल क्या है? क्या मैं ब्रश करना आज भूल गई हूँ? ड्राइविंग मैंने अब सीखी है बड़े होके, तो वो बचपन में नहीं सीखी थी, लेकिन मुझे यहाँ पे सीखनी पड़ी. लेकिन जो बचपन में सीखा था वो आज भी मेरा अडेप्टेड है. व्हाई? बिकॉज जो हम अर्ली स्टेजेस पे स्टार्ट करते हैं अडेप्ट कराना मसल्स को या अपने ब्रेन को, वो हमारा थ्रू आउट लाइफ चलता है. सो जब भी हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, वी नीड टू स्टार्ट एट द अर्ली स्टेजेस विच इज अ पार्ट ऑफ एल्टाड. जो साई काम कर रहा है वो लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट पे जो साई काम कर रहा है वो यही कर रहा है कि ग्रास रूट्स लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग जो बच्चों को एकेडमी में खिलाया जा रहा है. खेलो इंडिया ये इसलिए तो स्टार्ट हुआ है कि ग्रास रूट लेवल्स ट्रेनिंग्स में बच्चे मैक्सिमम आ सके, अपने पोटेंशियल को दिखा सके, अपनी बॉडी को समझ सके, और इसी हिसाब से हमारी ट्रेनिंग को अडेप्टेबिलिटी में कन्वर्ट हम करके बच्चे का मैक्सिमम टैलेंट लेकर आ सकते हैं बाहर. सो ये हम लोगों की सभी की कोशिश है कि खेलो इंडिया में हम किस तरीके से अपने बच्चों को आगे लेके आ सकते हैं. ओवरलोड प्रिंसिपल है रिकवरी का. सो वो जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, न्यूट्रिशन, स्लीप, स्पोर्ट्स मसाज, इन सबका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी रिकवरी में. जैसे कि स्लीप क्वालिटी कैसे है, आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है, आपका बॉडी वेट कितना था मॉर्निंग में और ट्रेनिंग के बाद कितना है, ये सब बहुत मैटर करता है. अगर आपका बॉडी ड्रॉप कर जाता है वेट मोर देन 3% यानी नॉन अडेप्टेशन हुआ है, सडन इंक्रीज होता है मॉर्निंग हार्ट रेट में मोर देन 20%, सो इट मीन्स आपकी रिकवरी पूरी नहीं हुई है. सो अगर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, आप स्लीप में बार बार उठते हो, इट मीन्स आप स्टिल यू आर फटीग, सो दैट साउंड स्लीप हैज टू बी देयर. सो जब हम स्लीप की बात करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डोंट एवर फोकस कि मुझे साउंड स्लीप आनी चाहिए. जब एक एथलीट फोकस करके अपनी ट्रेनिंग करता है तो उसको स्लीप ऑटोमेटिकली आती है. तो ये एथलीट्स के लिए एक मैसेज है कि जब भी आप ट्रेन करते हो अपने आप को, प्लीज फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ट्रेनिंग पार्ट. फिर आपको अपने आप अच्छी नींद आएगी. अदरवाइज आपका जो एक हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है. उस हार्मोन के इंक्रीज होने से ही आपका स्लीप डिस्टर्बेंस आता है. सो ट्राई टू वर्क एंड फोकस ऑन योर ट्रेनिंग ड्रिल्स. व्हेन यू आर ट्रेनिंग, जस्ट फोकस ऑन ट्रेनिंग, you will have a better sleep. Don't try to sleep, you will sleep automatically.
सो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्ट आप कैसे करोगे? रेस्ट इज नॉट कि आपने टीवी का हाथ में रिमोट लेके आप टीवी देख रहे हैं एंड आई एम टेकिंग रेस्ट. नो, इट इज ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स पर्सन हु इज ट्रेनिंग फॉर अ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स. दे नीड टू बी वेरी डेडिकेटेड. सो मेडिटेशन करेंगे, स्विमिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक कर सकते हैं. सो दीज आर योर रेस्ट मेथड्स. साइकिलिंग कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ योर मेंटल ट्रेनिंग. So massage, I have told you when you need to take massage and when not. So hydrotherapy, this is another component of your recovery. Hydrotherapy आपने देखा होगा कि बड़े सारे जो players हैं, hockey players हैं, वो जब खेल के आते हैं ground से, so they get immersed into the ice pool baths. Why? जो 10 से 15 डिग्री पे होता है और दिया जाता है 7 से 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट, जिससे क्या होता है कि जो आपकी लैक्टिक एसिड है वो रिलीज हो जाता है आपकी बॉडी से. आपकी जो माइन्यूट इंजरीज होती हैं मसल्स में, जो मैंने बताया था कि छोटे छोटे नॉट्स डेवलप हो जाते हैं एक्सरसाइज या ट्रेनिंग के दौरान, जो मसल डैमेज होता है, वो सब रिकवरी हमारा ये आइस पूल बाथ लेके आ सकता है. प्लस स्लीप, एज आई टोल्ड यू, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डोंट फॉरगेट टू टेक स्लीप एंड स्लीप ऑन टाइम, because it's very important to sleep for your regeneration for the next day. फ्लूइड यानी कि आप पानी का जो लॉस है उसको किस तरीके से करेंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फ्लूइड बॉडी में प्रॉपर नहीं लेते तो आपकी जो रिकवरी है वो अधूरी है. सो पानी पीना और इलेक्ट्रॉल्स लेना, अपने एनर्जी सिस्टम को एक्टिव रखना, एक सही खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सो न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं कि न्यूट्रिशन में हमें क्या क्या लेना चाहिए, सो जो बड़े इंपॉर्टेंट हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं विटामिन सी, आयरन, विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड. सो विटामिन सी जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है which is basically protect the body from the free radical damage that can result from the high intensity workout. So आप उसको berries में ले सकते हैं या raspberries में होते हैं, lemon, oranges, juice. Try to take a lot of fresh juices in your diet as a recovery drinks. रेड बुल्स और ये सब तो है ही, गेटोरेट हमारे जो फ्यूल एनर्जाइज्ड हमें करते हैं, बट ट्राई टू टेक द फ्रेश you know the juices which will replenish the deficiencies also, like vitamin C. आयरन क्या इंप्रूव करेगा? आपकी बॉडी का ऑक्सीजन अपटेक, जो मसल्स को चाहिए होता है वो इंपॉर्टेंट होता है. कैल्शियम एंड विटामिन डी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर जॉइंट्स, योर मसल्स, फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर. आपने सुना होगा कि जो जिमनास्ट हैं उनको सोमरसॉल्ट करते हुए या लैंडिंग करते हुए शिन ब्रेक हो गया. मैंने बहुत देखा है कॉमनवेल्थ गेम्स में, इतने सारे एथलीट्स का शिन ब्रेक हो गया था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द डेंसिटी, द प्रॉपर डेंसिटी ऑफ देयर बोन्स. कैल्शियम उनको नहीं मिलता प्रॉपर, या उनका विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो डेफिनेटली फ्रैक्चर विल बी देयर इन द बोन्स, चाहे आप कितने भी अच्छे एथलीट्स हो. तो अपनी बॉडी को कंडीशन तो हमें करना ही है, प्लस उसको फ्यूल अप करना है विद द राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. देन इट कम्स दी जिंक. जिंक क्या करता है? जिंक आपके जो फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करता है. सो जिंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Let's not take it in detail. So meditation इसलिए मैं बताती हूँ हमेशा कि फिजिकल ट्रेनिंग के साथ एक मेंटल ट्रेनिंग करना, रिलैक्सेशन मेथड करना बहुत जरूरी होता है. विजुअलाइजेशन, ब्रीदिंग टेक्निक, योगा, दीज आर वेरी एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ योर रिकवरी. बिकॉज मैं रिकवरी के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब करना क्या जरूरी है. तो आपने क्या करना है कि एक डायरी बनानी चाहिए एक एथलीट को हमेशा, और अपनी नोट करना चाहिए कि वो किस तरीके से अपना मैनेजमेंट करेगा. डेली उसने अपना हार्ट रेट लेना चाहिए, बॉडी वेट, अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप मेंशन करनी चाहिए. वीकली उसको रेस्ट करना चाहिए कि कोई भी एक दिन वो ले ले जिसमें वो अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी करेगा, अपनी हॉबी की चीज करेगा. ऐसे नहीं बस एक स्पोर्ट्स ही खेलते रहना है. जो उसकी खुद की हॉबी है, दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू जस्ट गो फॉर वाचिंग द मूवी, या वो वांट्स टू गो फॉर देयर स्विमिंग, जो भी उनको अच्छा लगता है, दे शुड प्लान देयर वीक, जिससे कि उनको पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल पे जाना चाहता हूँ स्पोर्ट्स में. ओलंपिक्स खेलना है तो फिर डेडिकेशन तो चाहिए स्टार्टिंग से ही. बैलेंस डाइट का क्या रोल होता है, तो हॉट और कोल्ड मसाज हमें कब करनी है, ब्रीदिंग, विजुअलाइजेशन, ये सब हमें पता होना चाहिए. सो हियर आई एंड अप माय वेबिनार. Hope I could answer the queries. If you have anything else to talk about, please you can raise me the questions.
because I believe that winners always train and losers always complain. So I'm here to train you in a better way as a being sports physio. And I covered the whole basic warm-up, stretches, nutrition in a small groups and the techniques of corrective. Dr. Vandana, thank you so much for your wonderful presentation. In fact, I was very, keenly and with extreme alertness, I was listening to each and every word you were saying, because I believe in the trickle-down theory. You have taught us now. Now, it's our job to trickle it down to others. But still, I would like to have you here offline. Thanks for the presentation. Let me ask you, let me begin the question answer session, because my coaches, they will initially have that hiccups to हम पहले शुरू करें या हम कौन करेगा, तो हम ही शुरू कर देते हैं. See, when जब मैं एथलीट रहा करता था long back, this is 1986 1990 के आसपास, तो whenever जब भी इंजरी होता था तो उस समय बस एक शब्द बोला जाता था हम लोगों को, RICE, RICE, R for rest and बाकी ICE is ice, so that's all. But अब स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन इतना इम्प्रूव हो गया, टेक्नोलॉजी, so much has come up. So my question now is, immediately when my athlete or any sportswoman, man, when he gets an injury while playing, maybe while practicing, while participating in an event, so what should be the immediate first aid? Because there's a lot of confusion between many physiotherapists. Some suggest warm water therapy, some suggest ice water therapy. There's a lot of confusion. So मेरे को, and मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, मेरा एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल का सारा कोचेस अटेंड कर रहे हैं. So I'm seeing all the names. So all 36 coaches are here. Under them, at least 30 बच्चे coaching कर ही रहे हैं रोज. जी. So first aid is very important, I believe. So before you take any athlete to a orthopedician or whoever, immediately हमें क्या करना चाहिए? This is my first question. सर, इमीडिएटली हमें आइस थेरेपी ही करनी चाहिए, क्योंकि आइस थेरेपी वैसो कंस्ट्रक्शन करती है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करती है. अगर कहीं पे इंटरनल इंजरी भी हो रही है तो स्टॉप कर देगी पुलिंग. लेकिन अगर आपने हॉट पैक कर दिया, सपोज किसी का एंकल ट्विस्ट हुआ, ठीक है, अब एंकल ट्विस्ट होने पर अगर फुटबॉलर है, उसका एंकल ट्विस्ट हुआ, तो मुझे ये नहीं पता कि उसका मांस फट गया है या सिर्फ उसको लिगामेंट इंजरी हुई है. तो आइस पैक देने से मेरा जो रिस्क फैक्टर है फर्दर इंजरी को बढ़ाने का, वो खत्म हो जाता है. लेकिन अगर मैंने हॉट पैक दे दिया, उसका ऑलरेडी मसल डैमेज है और उसमें मैंने उसको और हॉट पैक दे दिया, तो उसका जो ब्लड, जो एक ऑलरेडी स्कार टिश्यू बना हुआ है, वो और बढ़ जाएगा मसल में. सो हॉट इज बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेटरी इन एनी स्पोर्ट्स एट द फर्स्ट बेसिक. 24 घंटे 48 घंटे के अंदर हमने अपने प्लेयर्स को सिर्फ आइस कंप्रेशन थेरेपी ही देनी होती है. स्टेबलाइज करने के लिए आप उनको टेपिंग मेथड्स कर सकते हैं, बट आइस इज द ओनली वे टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द मसल. हॉट पैक हम कभी भी नहीं देते सर इनिशियल फेज में. अगर आपका मसल फट गया अंदर से, टिश्यू डैमेज है, तो वो उसको और इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उसका काम ही यही है ब्लड सर्कुलेशन का इम्प्रूव कर देना. लेकिन जो आइस है वो एनेस्थेटिक इफेक्ट देती है, वो वहीं पे उसको पुलिंग को रोक देती है और न्यूट्रिशन लेकर आती है, स्कार टिश्यू को बढ़ने से रोकती है. सो बेटर गो फॉर द आइस. तभी तो मैंने बताया ना कि जो हम आइस पूल बाथ यूज करते हैं हॉकी प्लेयर्स या जो बहुत अग्रेसिव स्पोर्ट्स हैं जैसे फुटबॉल है, उनको क्यों इमर्स कर देते हैं इमीडिएटली आइस पूल बाथ में, कि कोई छोटी छोटी जो उनको इंजरीज हुई होंगी, माइक्रो ट्रॉमास हैं, वो वहीं पे ठीक हो जाते हैं. वो ट्रिगर पॉइंट्स में डेवलप नहीं होते. हीटिंग से वो सब हेल्प नहीं होगा. हीटिंग इज बेसिकली अ फर्दर रिहैबिलिटेशन दिस थिंग टू मिनिमाइज द स्वेलिंग एंड ऑल and to release the muscle, but ice is the key role to start at the basic initial 48 hours में वही देते हैं हम. So whatever the RICE concept is there, it is correct till now. Okay. Following our grassroots. Okay. Okay, thank you. So we are back to basics then.
हाँ The basic pyramid is the सर, same. मैं Yeah. तो ग्रास रूट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग के लिए आऊंगी, अगर आपके वहां पर भी आऊंगी तो आई हैव टू टॉक अबाउट द ग्रास रूट्स लेवल ऑफ ट्रेनिंग। के बच्चा आपके पास आया है, एक बेसिक एज में 8-9 साल का बच्चा आया या 6 साल का बच्चा आया, तो उसको ट्रेन कैसे करना है हमें, अडेप्टेबिलिटी जो कोचेस करते हैं, बिकॉज इतने चैलेंजेस है कोचेस के पास कि बच्चा तो आ गया, पेरेंट्स की इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट प्लीज आप अपने बच्चे की पहले एफिशिएंसी तो देखिए क्या क्या है, वो उस पोटेंशियल को हमें हेल्प करना है, बच्चे को उसको डेवलप कराने में। हमें वेट नहीं करना कि पहले इसको इंजरी होगी तो हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि एक छोटे बच्चों को तो क्या ही इंजरी होगी जब तक कोई कॉन्टैक्ट स्पॉट नहीं होगा, है ना। छोटे बच्चों को क्या होती है इंजरीज, कॉन्टैक्ट स्पॉट होगा तो ही इंजरी होती है, जो विच इज फिजिकल इंजरीज। तो इंटरनल इंजरीज को मिनिमाइज करने के लिए ही तो हमें उनको कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस बतानी है, उनके फुट पे काम करना है। मैंने बोला मैं पोडाट्रिस्ट भी हूँ, मैं फुट असेसमेंट्स भी करती हूँ, बच्चों का पता लगाती हूँ कि पोस्टरल अलाइनमेंट क्या है, फॉरवर्ड प्रेशर रखता है, बीच में रखता है, पीछे रखता है, तो उससे मैं पोस्चर उसका करेक्ट करके शूज के अंदर इंसोल्स भी देती हूँ, जिससे उसका पोस्चर तो करेक्ट हो जाता है। उसके बाद उसको आप उस वे में अगर ट्रेन करते हैं तो वो हमें 100% रिजल्ट देता है सर, करेक्टिव। Okay, ma'am. Thank you. And my second question is, I'm sorry, I have some cough. So, please bear with me. My second question is, मेरा बच्चे लोग आकर के मुझे बोल देते हैं, सर मेरा लिगामेंट इंजरी हो गई, या मेनिस्कस टेयर हो गया है, या टेंडन कुछ हो गया है, मुझे सर्जरी कराना है। You know, because these days information is available in internet पढ़ लेता है, गूगल बाबा से पूछ लेता है, और गूगल से ही सीख लेता है, अब ये करना वो करना है। तो आपसे मैं सुनना चाहूंगा कि कब एक एथलीट को सर्जरी में जाना चाहिए। ठीक है, मैं ACL का एग्जांपल लेती हूँ, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, जो कि नी में होता है। सबसे ज्यादा बच्चों को ACL इंजरीज, मेनिस्कस इंजरीज ही होती हैं सर। इसमें ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में क्या होता है कि ट्रॉमा हुआ है, लिगामेंट अभी भी इंटैक्ट है, यानी कि अभी पूरा नहीं टूटा है। सेकेंड ग्रेड में क्या होता है कि टूट गया है लेकिन अभी भी जुड़ा हुआ है। ग्रेड 3 में होता है कंप्लीट टीयर हो चुका है। तो सिर्फ ग्रेड 3 अगर टीयर होता है एथलीट का, उसी में हम सर्जिकल इंटरवेंशन लेते हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में डिपेंडिंग ऑन द स्पोर्ट्स का, किस स्पोर्ट्स से है बच्चा, अगर शूटिंग से किसी को ग्रेड 2 हुआ है तो उसको सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, उसको अच्छे से रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन यस, ग्रेड 2 में अगर फुटबॉलर है तो डेफिनेटली सर्जिकल इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि डेफिनेटली अगर उसको मैं रिहैबिलिटेट भी कर दूंगी, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा उसके लिगामेंट पे, तो वो ग्रेड 3 में चला ही जाएगा, टीयर होगा ही होगा आगे जाके। सो लेट द ऑर्थोपेडिक एंड फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड कि सर्जरी करनी है नहीं करनी है। ये प्लेयर का काम नहीं है, ये डॉक्टर्स का काम है। लेट अस असेस एंड देन डिसाइड कि करना क्या है। रिहैबिलिटेशन, तभी तो कहते हैं सर, रिहैबिलिटेशन अगर अच्छी होगी, बच्चे की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो लिगामेंट नहीं टूटेंगे। लिगामेंट चाहे एंकल का हो, चाहे नी का हो, चाहे शोल्डर का हो, ओवर यूज इंजरीज होने के कारण ही तो लिगामेंट इंजरीज हो रही है आजकल के प्लेयर्स को, which they are not understanding. They are just playing, but they are not conditioning their muscles. They are not doing warm up proper. They are not doing recovery methods. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको एक एथलीट को समझना होगा। जो एक्सप्लोसिव स्पोर्ट्स हैं, लाइक फुटबॉलर्स हैं, टेनिस प्लेयर्स हैं, जो एक्सप्लोसिव हॉकी प्लेयर्स हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। Okay, thank you, ma'am. Thank you. हमारे कोचेस सब लोग को मैडम से जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में एक सवाल पढ़ रहा था, somebody was asking about omega-3 tablets or something they asking. जिसको पूछना पूछ लीजिए, the platform is open. Good afternoon, sir, and good afternoon, ma'am. I ask one question. Yeah. Where use ice? बॉडी के किस किस पार्ट पर आइस यूज कर सकते हैं और कहां पर नहीं कर सकते हैं, थोड़ा इस पर आप बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा। सर आइस आप मसल पे भी यूज कर सकते हैं, जॉइंट पे भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे किसी को शोल्डर में दर्द है, नहीं, समटाइम्स सर हम आइस हेड पे भी रख देते हैं कूलिंग पार्ट के लिए। आपने देखा होगा 3 मिनट्स या 2-3 मिनट्स तक हम अपने हेड पे भी रखते हैं फॉर कूलिंग। हेडेक्स अगर होते हैं तो हम रखते हैं, आइस के ऊपर भी रखते हैं, आइस की रिलैक्सेशन के लिए। अगर मेरे किसी एथलीट को नींद नहीं आ रही है
तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं हेड के जो मैं उनको देती थी और थोड़ी देर के लिए आइस रख देती थी आइस के ऊपर, जिससे उनकी रिकवरी भी होती थी। स्ट्रेस जो आंखों की मसल्स है वो फटीग। सो आइस आप कहाँ का रख सकते हैं? आप अपने जॉइंट्स पे रख सकते हैं, मसल्स पे रख सकते हैं, फटीग मसल्स जो है वहां पर रख सकते हैं। स्टमक पे रखने का कोई वो नहीं है, स्टमक पे नहीं रख सकते हैं टू एड ऑन। अच्छा, चेस्ट पर मैम? चेस्ट पे भी नहीं रख सकते सर, हार्ट है आपका तो वहां पे नहीं रखेंगे, स्टमक पे नहीं रखेंगे, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वहां पर नहीं रखेंगे, मसल्स और जॉइंट्स पे रखेंगे। मैम एक क्वेश्चन और मेरा ट्रेनिंग से रिलेटेड है हाँ जी। कि एक एथलीट आता है जो जूनियर एथलीट है या बिगनर है, जब उसको ट्रेनिंग में ले जाते हैं तो उसके साथ जो सीनियर एथलीट होते हैं, कभी कभी वो क्या करता है, मैक्सिमम हार्ट रेट के लिमिट को पार कर जाता है और सडन जब उसको रिकवर करने के फेज में आना होता है तो वो सांस लेने में अपने आप को बहुत डिफिकल्ट महसूस करता है। उस समय उस एथलीट के साथ क्या करना चाहिए? सर उस लेवल तक आने ही नहीं देना, यही तो कोच का काम है ना कि उसको प्रिवेंट करना है। मैम मैम अगर वो मैं आ पहले ही गया, बता रहा हूँ, अगर वो आ गया, लेट मी हाँ, आंसर यू। बिल्कुल नहीं है ना वो, तो हम तो अभी हर समय तो अभी तो वो दौड़ रही है ना, उसके पास तो आइडिया नहीं है ना कि अभी हम किस पेस में जा रहे हैं। वो यस। तो एलिट एथलीट ही बता सकता है ना कि मेरा ये पेस है, ये स्ट्राइड लेंथ है, इतने तो समय से सर हम तभी जा तो रहे हैं। मैंने बोला एक डायरी मेंटेन करनी है ना एथलीट को कि उसकी डेली का हार्ट रेट क्या है। इस सोल्यूशन मैं आपको भी बता रही हूँ कि उस वक्त क्या करना हाँ है, हाँ लेकिन एक डायरी आप मेंटेन कराए ना अपने एथलीट से। उसको बोलो कि डेली का हार्ट रेट अपना चेक कर, रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट कब होगा? जब वो सो के बेड पर ही है, जस्ट रेस्ट पर है, तब उसको अपना हार्ट रेट चेक करना है। फिर जब वो इंटेंसिटी वर्कआउट आपके साथ कर रहा है, आप कोच है आपके साथ वो कर रहा है, तब उसका आप हार्ट रेट चेक करो। आपने सपोज 12 मिनट्स का बीप टेस्ट किया उसका, आप चेक करो ना उसका हार्ट रेट कितना है, फिर आप मैम एक डिसाइड करो। कंफ्यूजन है अब मैम सपोज आपने बोला कि वो बच्चा हार्ट रेट को क्रॉस कर गया, तो हार्ट रेट का क्या वो है? 220 माइनस 8। 20 - एज, या आई नो। ठीक है। आपने वो उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट, सपोज उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट 140 है सपोज, उसने क्रॉस कर लिया 150, तो डेफिनेटली उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ही ना नॉर्मल बैक करने में। तो उसमें स्पेशली उसको लेटा देना है, उसके feet को मसाज करना है आपने, और उसको डीप ब्रेथ्स बोलना है लेने के लिए, और उसको मैम हाइड्रेट करना है। प्रोनेशन में या सुपनेशन में उसको लेटाना है? सर सुपाइन पोजीशन में आप नॉर्मल उसको जैसे एक श्वासन करते हैं ना हम, या बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में उसको लेटा देना, और उसको ब्रेथ लेनी है। अगर नाक से नहीं है तो मुंह से लो उसको सांस, उसको एयर को एनगल्फ करने दो, एयर को लेके लेके जाने दो। उसका पल्स रेट तभी नॉर्मल होगा, उसके फुट को आप मसाज कर सकते हो। ठीक है। और अगर उसको ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है तो पानी नहीं देना एकदम से, क्योंकि उसको चोकिंग हो सकती है। पानी एकदम से नहीं देना है, उसको रिलैक्स करना है और खुला छोड़ना है, भीड़ इकट्ठा नहीं करना होता उसके सामने। ब्रेथलेसनेस में हमेशा बॉडी को न्यूट्रल छोड़ देना है, बिल्कुल जैसे डेड बॉडी की तरह से शव आसन में छोड़ के उसको बस रिलैक्स करने देना। डीप ब्रेथ, मुंह से सांस लो, या नाक से नहीं करना। तो डायफ्राम सपोर्ट भी कर सकते हैं? क्या सर? डायफ्राम सपोर्ट कर सकते हैं ना, बाय हैंड से सपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कर ले नहीं पा रहा है ना, उसका डायफ्राम काम नहीं कर रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा हाँ है। बिल्कुल कर सकते हैं, सपोर्टिव ब्रीदिंग्स आप करा सकते हैं। अगर एक्टिवली नहीं हो रहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं बेसिकली। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका जो VO2 है, जो मैक्सिमम है ऑक्सीजन अपटेक, वो बहुत अच्छा हो जाता है ट्रेनिंग कर करके। तो इतना कुछ क्रिटिकल नहीं आता। बट हाँ, जो जनरल पॉपुलेशन है उनमें आ सकता है कि आज उसको अगर हमने स्प्रिंट करा दिया तो डेफिनेटली उसको CPR की जरूरत पड़ जाएगी, बट नॉट इन मैम नॉर्मल एथलीट्स। या मैम एक कंफ्यूजन है मैम, राजीव अभी अपने का राजीव रेस्टिंग राजीव हार्ट लोचन, है। यस सर, राजीव लोचन, यस सर, होल्ड ऑन। ओके, थैंक यू सर। पहले आप सवाल पूछने के बाद गेस्ट स्पीकर को जवाब देने का स्पेस दीजिए, पूरे जवाब सुनिए। ओके उसके बाद आपको जो पूछना यहाँ आप अपने नॉलेज को दिखाने का ये वेबिनार नहीं है। मैं समझ गया हूँ आपके पास सारा नॉलेज है, लेकिन फिर भी हमारे एथलीट्स इंजरी हो ही रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है। ये प्लेटफॉर्म सीखने के लिए है। आप सवाल पूछ के शांत हो जाइए, सुन लीजिए पूरा, उसके बाद जो पूछना पूछ लीजिए। अब किसी और को पूछना था पूछिए।
ओमेगा 3 फैटी एसिड का रविंदर सर बता रहे थे कि किसी ने मैसेज डाला था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमें वॉलनट से मिल सकता है, बादाम खाने से मिल सकता है। और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारी बॉडी में एक हार्मोन को, जिसको वो रेगुलेट करता है, जिससे हमारी जो बॉडी की इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, उसको खत्म करने में हेल्प करता है। तो इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो हमें अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि अपनी डाइट में वो बादाम जरूर खाएं, फ्लेक्स सीड्स खाएं, सुबह उठ के रोस्टेड फ्लेक्स सीड्स मिलते हैं वो जरूर खाएं, बादाम खाएं, अखरोट खाएं। अखरोट खाने से क्या होगा कि आपकी जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है वो भी इंप्रूव होती है, क्रैपिटस साउंड्स नहीं आती हैं, और जो आपका इन्फ्लामेशन है बॉडी में, स्वेलिंग अगर है कहीं पे, उसको मिनिमाइज कर देती है। सो डेफिनेटली इंजरीज के जो रिस्क फैक्टर हैं वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हाँ, किसी और को पूछना तो पूछिए। एक ने मुझे लिखा हुआ है ये कि मैम व्हाट वुड बी द आइडियल स्लीपिंग आवर्स फॉर फास्ट रिकवरी। सो मैंने पहले ही बता दिया कि जब एक एथलीट फोकस करता है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, तो उसको सोचना नहीं है कि भाई मैंने 10 घंटे सोना है, 16 घंटे सोना है या 8 घंटे सोना है। उसका जो ऑटोनॉमिक अपना ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अपने आप उसको ऑर्डर करता है कि नाउ यू हैव टू स्लीप। So you will sleep automatically and you will wake up at the your clock time। हमारी बॉडी में एक क्लॉक टाइम होती है जो डेवलप होती है। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमें ना 10 से 10:30 बजे के बीच में, 10 से 4 बजे के बीच में हमारी जो बॉडी है ना वो डिटॉक्सिफाई होती है। अगर सपोज मैं 12 बजे सोई हूं तो मुझे 1 2 3 4 सिर्फ 4 घंटे मिले अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, रिसर्च में देखा गया है कि 10 से 4 बजे का एक ऐसा टाइम है हमारी बॉडी के अंदर जो गॉड ने ही हमें दिया है कि हम अपनी बॉडी को री एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं। तभी तो रात को हमें सोना होता है। जो लोग आप रात को कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं आप उनको देखेंगे, उनको नौजिया रहता है, उनको वॉमिटिंग्स रहती है, तो वो बोलते हैं हम तो दिन में सो जाते हैं, रात को काम करेंगे। लेकिन नहीं, रात को ही सोना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी ऐसी है। तो जब हमारा सोने का टाइम है, प्लीज मोबाइल में टाइम वेस्ट ना करें, टीवी देखने में टाइम वेस्ट ना करें। स्लीप का रूटीन एथलीट के लिए एक टाइम सेट करना बहुत जरूरी है कि वो इतने बजे सोएगा ही सोएगा, उसकी ऑटोमेटिकली अपने आप आंख खुल जानी है। तो सोचने का मतलब ही नहीं है कि इतने घंटे की स्लीप लेनी है मुझे। अब एक बार आंख खुल गई तो दोबारा थोड़ी ना आप सो सकते हो, वो तो जबरदस्ती वाली बात है। सो डोंट टेक इट एज अ फास्टेस्ट रिकवरी मेथड, ये कुछ ऐसा कोई मेथड नहीं होता है। जस्ट ट्राई टू अडेप्ट योर बॉडी टू स्लीप ऑन टाइम। आप अपने टाइम पे सोइए, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस कीजिए, आपकी ऑटोमेटिकली नींद आएगी और अपने आप आंख खुल जाएगी। सो डोंट थिंक अबाउट इट। गुड इवनिंग मैम। मैम माय क्वेश्चन इज रेस्टिंग हार्ट रेट मैम रेस्ट के कितने देर बाद लेना चाहिए? 6 to 8 hours, 8 to 10 hours नो नो, और 10 to 12 आंख hours? खुले रेस्टिंग हार्ट रेट होती, मैंने बताया ना, एज यू वेक अप ऑन द बेड, रेस्टिंग हार्ट रेट वही होती है। मैम एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक रेस्टिंग हार्ट रेट। पल्स यस मैम। ऑक्सीमीटर होते हैं आजकल, यस मैम। जैसे फिंगर पे लगाना है, अपने बेड के पास ही रखना है, रात को उठते के साथ ही जैसे यू हैव ओपन योर दिस आईज, दैट विल बी योर रेस्टिंग। मैम क्वेश्चन ये था कि कितना देर स्लीप होना चाहिए? 6 to 8 hours, 8 to 10 hours हाँ, और मिनिमम 10 to 12 hours? मिनिमम की बात करो ना फिर आप। यस मैम। मिनिमम 8 hours फॉर द ओके मैम, थैंक यू मैम। या किसी और को कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछिए। मेरा चैनल है फिजियोल्यूशन, आप सब उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मेरे और भी वेबिनार्स हैं ग्रासरूट लेवल्स और ट्रेडिंग को, जिसमें आप सुन सकते हैं। और मेरा चैनल है फिजियोल्यूशन, जो मैंने लिखा ही हुआ है फिजियोल्यूशन, तो आप यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब इट। यदि क्वेश्चंस नहीं है तो फिर किसी के पास और क्वेश्चन है? हेलो। हाँ जी, यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बहुत ही बिगनर्स के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो जैसे वो हमारे पास आते हैं तो उसके बाद ना मुझे सबसे ज्यादा सिन बोन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लाइक उनके सिन बोन में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब कंसल्ट भी किया, तो उन्होंने बताया कि आपके ग्राउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों के शूज का प्रॉब्लम हो सकता है, और इस तरह की मतलब, और उन्होंने थेरेपी के लिए बोला कि आप मतलब गर्म पानी और ठंडा कोल्ड कॉम्पैक्ट देना है। हाँ, कंट्रास्ट तो जी मतलब 2 मिनट्स का ऐसे करके मतलब आप इतने इतने देर पे दे सकते हैं। तो मैम क्या इस बीच में हम उनको प्रैक्टिस दे सकते हैं? सिन बोन प्रॉब्लम के बीच में क्या बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं, अगर आप उसको रिलीज करवा दोगे अपने फिजियो के थ्रू। आप अपने फिजियो मैम देखो, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। पहले तो बच्चे का कैल्शियम और विटामिन डी आपको पता करना है ब्लड टेस्ट के थ्रू कि इन बच्चों में कितना है, ठीक है। जी अगर उसकी डेफिशिएंसी आपको मिलती है तो आपको वो पेरेंट्स को बतानी है, पेरेंट्स विल टेक केयर ऑफ इट। सेकेंडली आता है मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपका सरफेस अनइवन है तो डेफिनेटली शिन पेन आएगी ही, क्योंकि फुटवर्क उसी पे हो रहा है, तो उसी की वजह से बोन्स में लोड आ रहा है और शिन पेन आ रही है। प्लस शिन बोन पेन को प्रिवेंट करने की एक्सरसाइजेस मेरे चैनल में दी हुई हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे फिजियोल्यूशन, उसमें स्पेस देके शिन पेन लिख देना, तो वो आपको एक्सरसाइजेस, उसकी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स की ना एक्सरसाइजेस होती है, वो करानी पड़ती है। तो आपको लोअर बिलो नी एक्सरसाइजेस अपने प्लेयर्स को करानी होगी, काम करना होगा। और प्लस जैसे मैंने बताया, वार्म अप, जब आप ट्रेनिंग करने से पहले अपने पैर की जो शिन बोन की जो मीडियल लाइन होती है, जॉइंट लाइन, उस पे फिजियो को स्ट्रेच करना होगा, उसको लोशन या कोई भी चीज जिससे वो उस मसल को प्रॉपर वे में रिलीज कर सके। और ट्रेनिंग के बाद भी मैम आपको रिलीज कराना ही होगा अपने एथलीट्स को। थेराबेंड स्ट्रेचेस कराइए आप अपने एथलीट को, तो डेफिनेटली उनकी शिन पेन आप देखना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। स्ट्रेंथनिंग करानी है, मैंने आपको बताया लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग कराओगे तो मेरे चैनल में आपको मिलेगी फिजियोल्यूशन में। बाकी मसल की स्ट्रेचिंग होना, स्ट्रेचिंग करवाना, और हफ्ते में एक बार बॉडी की मसाज होना बच्चों की बहुत जरूरी है। तो आपकी डेफिनेटली बच्चे की इंजरी भी नहीं होगी एंड किड्स विल ट्रेन विद यू। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। नूतन, मैं तुमको देख रहा हूँ, वुजू इस वो मार्शल आर्ट वाले गेम है, बहुत सारा इंजरी होती है। नूतन का कुछ पूछना तो पूछो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मुझे इंजरी से रिलेटेड तो अभी नहीं, मुझे पूछना है कि नींद, कई बार ऐसा होता है जब मैं दूसरी टाइम ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ तो नींद नहीं आती है, तो ऐसा क्यों मैम? जैसे हार्डवर्क करने के बाद तो नेचुरली सबको नींद आ जाता है, बट मुझे ये प्रॉब्लम होती है थर्ड टाइम जब मैं मतलब दोपहर की ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ तो नींद नहीं आती, रात को 1-1 बज जाते हैं, 2-2 बज जाता है। तो मैं, आपने मेरा पीपीटी शायद ध्यान से नहीं सुना। मैंने उसमें बताया है कि नींद क्यों नहीं आती है। जब आपकी मसल थकी होगी, फटीग होंगे आप, यस आपकी रिकवरी हुई नहीं होगी, तो आपको नींद आएगी ही नहीं। तो उसमें आपको क्या करना है, हाइड्रेट करना है अपनी बॉडी को, बैलेंस फूड लेना होगा, और रात को सोने से पहले आपके जो पैर हैं उनकी फुट मसाज करनी होगी ऑयल से। टेक आलमंड ऑयल एंड मसाज योर फीट्स, ओके, एंड रब some oil over your palm and keep it over your eyes like this. ये मेथड आप करके देखना और मुझे बताना आपको नींद आई या नहीं आई। मेरा नंबर दिया हुआ है मैंने चार्ट में। ओके, थैंक यू मैम। पूजा रॉय, तुमको कुछ है पूछने का? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, मैं बॉक्सिंग प्लेयर भी हूँ एंड कोच भी हूँ, लेकिन मैंने अभी जस्ट जब सीनियर नेशनल बॉक्सिंग खेली थी तो मुझे ये शोल्डर पे हिट आया था, तो जिसकी वजह से मुझे पेन हो गया, और मैं ये बैक जो है वो मैं कर नहीं सकती, ना ही मैं बैक कर सकती हूँ, ना ही मैं फ्रंट पे ये जो एक्सरसाइज होता है वो मैं कर नहीं सकती। तो आप कुछ ऐसा मतलब बताएं जिससे मैं अपने प्लेयर्स को भी बता सकती हूँ कि क्या करना चाहिए अगर इसमें शोल्डर पे हिट आ जाए तो।
देखो अगर सबसे पहले तो मैंने रोल ऑफ वार्म अप बताया, शोल्डर स्ट्रेचेस करने कैसे हैं ये भी मेरे चैनल पे आपको मिलेगा कि शोल्डर की जो वार्म अप होती है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स, आई थिंक जो सर ने बोला है कि जब मैं ऑफलाइन वहां पर आऊंगी तो मैं सिखाऊंगी ऑन ग्राउंड, सबको सिखाऊंगी कि स्ट्रेच शोल्डर को कैसे करना होता है। उसके कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेचेस होते हैं जो मेरे चैनल में आपको मिलेंगे, आप देख लेना। प्लस हाँ, अब जैसे हिट हो ही गया, हिट होने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया, आप बताइए। मैं जब हिट आया था तो वहां पे स्प्रे दिया गया था, नेशनल में ही एक स्प्रे दिया गया था। सबसे बड़ा कौन सा स्प्रे, हीटिंग स्प्रे या आइस स्प्रे? हीटिंग स्प्रे। तो वहीं गड़बड़ हो गई ना मैम, ये तो गड़बड़ वहीं पे हो गई। जी मैम, वही नोटिस कर रही थी मैम, तो क्योंकि ये तो वहां बड़ी पे बेसिक नॉलेज है, हाउ कैन यू अलाउ समबडी टू स्प्रे ओवर योर शोल्डर? आप कैसे अलाउ कर सकते हो किसी को भी? मैम उस समय तो मैं इंजर्ड थी, वहां पे जो डॉक्टर्स थे तो वो हमें जो भी स्प्रे वो लोग ही दिए थे, हीटिंग स्प्रे वो लोग ही वहां पे ही दिए गए थे। तो वही गलती हुई है। सबसे पहले तो हीटिंग स्प्रे हम दे ही नहीं सकते, वो इंजरी को और बढ़ा देगा। आपने आइस रखनी थी उसी वक्त, 10 मिनट रखते, 7 मिनट रखते, और उसके बाद कोई शोल्डर की मूवमेंट नहीं होती। 2 दिन का रेस्ट करना था, आप स्लिंग में अपना शोल्डर रख सकते थे तो वो उसको फर्दर डैमेज नहीं होने देता। फिर धीरे धीरे अपनी रेंज ऑफ मोशन को देखते, फिर फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना होता है आफ्टर इंजरी। फिजियोथेरेपिस्ट विल असेस योर शोल्डर की कोई लिगामेंट तो नहीं टूटा, या कोई जो बरसा है, हमारे शोल्डर में बड़े सारे बरसाज हैं जो कैप्सूल्स होते हैं, उसमें कोई स्वेलिंग तो नहीं आ गई, उसको रिहैबिलिटेट करना होगा। पहले हम स्वेलिंग पेन पे काम करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उसके बाद रिहैबिलिटेट करते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। तो फिजियोथेरेपिस्ट इज योर आंसर, यू नीड टू विजिट टू अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट, गेट इट असेस्ड कि हुआ क्या है ना, कि कोई अगर शोल्डर डिसलोकेशन तो नहीं हुआ, अगर होता तो वो आपका शोल्डर ड्रूप हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कुछ मूवमेंट्स आप बता रही हैं कि रिस्ट्रिक्टेड है, आगे नहीं जा रहा, पीछे की तरफ लेटरल में नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली कोई लिगामेंट है जो स्ट्रेस आउट हुआ है, कोई इंपिंजमेंट हो गया होगा, तो उसको एक फिजियोथेरेपिस्ट ही है जो रूल आउट कर सकता है। सो यू डोंट नीड। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, मैंने फिजियोथेरेपी से कंसल्ट किया था, पर वो उतने अच्छे से वो मसाजर वगैरह से मसाज कर रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि इस चीज की जरूरत नहीं है, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो you need a sports physiotherapist, go to a sports physiotherapist, मेरे पास आ जाना नोएडा, मैं ठीक कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो डॉक्टर वंदना, आई थिंक आपके यहाँ आना जरूरी है। यस मेरे बच्चे लोगों के लिए, मेरे स्पोर्ट्स के बच्चों लोगों के लिए, आई थिंक यू आर नीडेड हियर। एंड मैं ये भी ओपन प्लेटफॉर्म में ही मैं पूछ ले रहा हूँ, या ऑफर दे रहा हूँ, या प्रपोजल रख रहा हूँ। ये राय साहब मुझे गाइड करेंगे इसमें कि we would like to take you on board as sports medicine consultant for the Bihar State Sport Authority. Sir, I can outsource a department also in Sai, where you can give me a sports injury center, जहाँ पे I will put my trained physios and the whole trainers, and this is how, जैसे दिल्ली में हम लोग करते हैं, साई में एक हमारा स्पोर्ट्स इंजरी का एक सेंटर है, वैसे ही हम वहाँ पे भी खोल सकते हैं, जिसमें मैं बहुत टाइम से इंटरेस्टेड हूँ भी, मैंने सर को भी बताया था। ठीक है, मैं सर से डिस्कस करके पहले स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में खोल देता हूँ पटना में, बेसिक से शुरू करता हूँ, फिर लेकिन वो तो साइमल्टेनियसली होते रहेगा। लेकिन आप मुझे बताइए कब आ रहे हैं? सर नेक्स्ट मंथ ही आ सकते हो, मैं तो अप्रैल में, नो प्रॉब्लम। ओके फाइन, सो वी I'll get connected with you and we'll fix up a date and time. I will take your number from Ronak and he can share your details. Sure. And Gaurav, kindly deliver the vote of thanks. Komal. Thank you very much. Let me stop you. There is one question, ma'am. There is any warm up for trapezius muscle? देखो trapezius muscle ये होती है हमारा, ये शोल्डर के ऊपर इधर trapezius, तो ये शोल्डर का मेरे से पूछ रहे हैं, इसका कोई वार्म अप नहीं होता है, इसको हम मसल को रिलीज करते हैं,
तो रिलीज आप एक मसाजर से कर सकते हैं या अपने किसी भी कोच को बोल सकते हैं टू अप्लाई सम लोशन एंड रिलीज द मसल एंड पेक्टोरल स्ट्रेचेस लाइक दिस। ये ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं और नेक स्ट्रेचेस कर सकते हैं, तो ये जो ट्रैप मसल है ये अपने आप रिलीज हो जाती है। तो दिस इज द आंसर फॉर ट्रेपीजियस, द लास्ट क्वेश्चन व्हिच ओके। श्वेता, मैं देख रहा हूँ तुम शामिल हो। मैम, श्वेता इज आवर स्टार रग्बी प्लेयर और एशियन रग्बी चैंपियनशिप 2 बार खेल चुकी है एंड वो रोल मॉडल है। उसको देख के बहुत सारे रग्बी प्लेयर्स बिहार में प्रोड्यूस हो रहे हैं। आई वुड से कि बिहार इज नाउ बिकमिंग ए फैक्ट्री which produces rugby players, especially in women, girls. तो श्वेता, तुम्हारे साथ तो इतना इंजुरीज हुआ है, बात क्यों नहीं करते हो, पूछ क्यों नहीं रहे हो? हेलो, चलिए ठीक है, we will ask you in person. That's okay. Gaurav, please do the vote of thanks. Thank you very much everyone for attending this session. Vanna ma'am, thank you so much for taking this session and सभी को समझाने के लिए कि स्पोर्ट्स इंजरी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. Roy sir, thank you very much for helping us arrange this session. और अभी इट सीम्स एज इफ काफी सारे सेशंस और भी आगे आपके साथ होंगे पर्सनली और मे बी ऑनलाइन मोड पे भी. इवन जो अटेंडेंस में भी जो हमारे पास रिमार्क आए उसमें भी काफी लोगों ने ये कहा है कि ऐसे सेशंस फिर से होने चाहिए. सो इट एविडेंटली आगे भी ऐसे सेशंस होते रहेंगे. एंड थैंक यू सो मच रविंद्रन सर, आप ट्रैवल कर रहे नो, बट थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. थैंक यू एवरीवन. Thank you, ma'am. We'll take it forward. Yes, definitely. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone.